we are going to solve this problem. We are going to simulate the problem, inventory problem. Okay, so I am just reading the problem. What is the name? What is the name of the owner? The owner of an electronic goods shop. The name is Bhangu. The owner of an electronic goods shop likes to experiment with his inventory problem. Inventory policy. He want to experiment with his inventory policy. Experiment करने का मतलब ये होता है कि उसे कितना स्टॉक रखना चाहिए, है ना, कितना उसका डिमांड पैटर्न है, मतलब what decisions he want to take some decisions on the results of the experiments to determine the order quantity, है ना, order quantity, है ना, how much I have to order, है ना. In the bakery problem the order quantity was fixed 35 packets, है ना, but it will not be fixed in other problems. So he want to determine the order quantity and the reorder points of his goods. ठीक है, two parameters, one is reorder points and one is the order quantity, है ना. How many products he want to order and when to order, how much to order and when to order, कब order करना है और कितना order करना है. He want to know this thing. He has a very good record of the data on the inventory of TV sets. ठीक है, the product is TV, which is given below. So order cost is rupees 100 per order, है ना. The cost for the order is rupees 100. In the bakery problem, we are not worrying about the order cost, है ना. Sometimes the order cost is 0, but here the order cost is rupees 100 for the television sets, and the holding cost is rupees 5 per set per week. It is 5 per television per week. So data is given weekly, है ना. Sometimes the data is given daily, sometimes it is weekly, sometimes it is monthly. So here data is given week by week. So this is the data for the demand distribution, है ना. Zero television, the probability is 0.2%. The one set of television will be sold in that week will be 0.5%. Two television sold 0.15, 3.1 and 4 televisions is 0.05. So demand varying from 0 to 4 and the probability distribution is given. So with the help of this probability distribution, you can make the demand table easily, as usual, as you have done in the previous classes. So you can make the demand table, no problem. The second data is given lead time distribution. So week 1, it means 1 week will be required, 1 week will be the lead time, the probability is 10%. 2 weeks will be the lead time, the probability is 25%. Means when you will order, suppose you are ordering 4 television sets and those 4 television sets will be received within 2 weeks, है ना, the probability is 25%, है ना. Those will be received within 3 weeks, the probability is 50%, and like so on. So this is the probability distribution for the lead time. So again you can find or you can predict the lead time according to this probability distribution. So he want to examine the order quantities ranging from 4 to 10. ठीक है, how much to order? He has to order 4 or he has to order 5, 6, 7, 8, 9, 10. And order quantities, how much television sets he has to order, right? And reorder points from 3 to 6. When to order? When the stock is 3 television sets, he has to order, or 4 or 5 or 6. ठीक है, स्टॉक में 3 होने पे ऑर्डर करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, 4 पे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, 5 पर, 6 पर. He want to know this thing. Similarly, he want to know कि मुझे कितना ऑर्डर करना ज्यादा सही रहेगा, 4 ऑर्डर करना, 5 ऑर्डर करना, 6 ऑर्डर करना, 7 ऑर्डर करना, हाउ मच टू ऑर्डर. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन.
इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिए। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पहले आप। बताइए, इज दिस इन सिमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी प्रॉब्लम? द ओनर ऑफ एन टेलीविजन सेट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, demand distribution is given, lead time distribution is given, order cost is given, holding cost is given, है ना? You have to tell how much to order and when to order, है ना? आपको ये बताना है कि how much to order, 4 से लेके 10 के बीच में वेरी कर रही हैं चीजें, है ना? आपको फोकस 4 से 10 के बीच में करना है, 4 से कम पर फोकस नहीं करना है, 10 से ज्यादा पर फोकस नहीं करना है। You have to focus between 4 to 10, how much to order and when to order, 3 to 6 पे फोकस करना है ना? You have not to focus below 3 and above 6. You have to focus in between 3 to 6. So is the question clear to all of you? हाँ जी, जवाब दीजिए। Is the question clear? Pratyush? Yes sir, clear as. Question is clear. Good. Now you tell me how will you do it? है ना? What will be the process? कैसे करेंगे? सर सबसे पहले सर डिमांड टेबल बनाएंगे पूरी, मतलब रैंडम वेरिएबल एक रैंडम नंबर्स लेके। Very good. We will predict the demand for how many days? How many days? You will predict the demand for how many days? सर ये लीड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में सर 5 वीक है, तो सर 5 वीक के लिए होगा। No. 5 वीक्स। No, no, no. इससे कोई रिलेशन नहीं है ना? You will simulate the problem for, है ना, maybe it may be 30 weeks, है ना? यदि आप 30 weeks 30 हफ्ते के लिए, 15 हफ्तों के लिए, 10 हफ्ते, that you have to decide. If you are doing manually, है ना, if you are doing manually, then this value will be less. It may be 20 weeks or it may be 10 weeks, है ना, or it may be 30 weeks maximum. तो 20 weeks के लिए आप कर सकते हैं इसको, है ना, manually. And if you are going for computer simulation, then you can increase it up to 100 weeks or 200 weeks or 500 weeks like that. तो मैनुअल वाली जो लेंथ ऑफ सिमुलेशन रन है, उसके लिए भी हालांकि एक फॉर्मूला होता है कि हमें कितने लेंथ ऑफ सिमुलेशन रन पे जाना है, so that the results will be accurate, है ना, somewhat accuracy of the results will be more. तो अभी क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं ना, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लेंथ ऑफ द सिमुलेशन रन हम कैसे डिसाइड करें। तो यहां पर हम अपनी प्रॉब्लम को 20 वीक्स के लिए सिमुलेट करेंगे। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि आपको कितने दिनों के लिए सिमुलेट करना है, ठीक है? सो वी विल सिमुलेट फॉर 20 वीक्स, ठीक है? तो अब कैसे करोगे बताओ? चलो, आपने डिमांड प्रेडिक्ट कर ली 20 डेज के लिए विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? Second step will be to predict the lead time. So lead time you will predict for how many weeks? How many weeks you will predict the lead time with the help of random numbers? So lead time 5 weeks. Not 5 weeks, not 5 weeks. देखो, आपको लीड टाइम की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है? और 20 हफ्ते के सिमुलेशन में आप करीब कितने बार ऑर्डर करेंगे? एक मोटा अंदाजा आपको चाहिए। हम कोई चीज 20 दिन के लिए सिमुलेट कर रहे हैं, तो हम 20 दिन तो ऑर्डर नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम पहले दिन ऑर्डर करें, फिर 5वें दिन ऑर्डर करें, फिर 11वें दिन ऑर्डर करें, फिर 15वें दिन ऑर्डर करें। तो इस तरह से हमें कुछ ऑर्डर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? जब भी हमारा स्टॉक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाएगा, जब भी तो हम ऑर्डर करेंगे, और उसी वक्त हमें लीड टाइम की नीड पड़ेगी। कितने दिन का लीड टाइम लगेगा इस ऑर्डर को फुलफिल होने में? तो अपने स्वविवेक से आप डिसाइड कर लीजिए। इफ यू आर सिमुलेटिंग द होल प्रॉब्लम फॉर 20 वीक्स, देन एटलीस्ट 20 वीक्स में हो सकता है कि आपको 10 बार ऑर्डर करना पड़ जाए, मैक्सिमम, है ना, 10 से कम ही पड़ेगा। तो आप अपने लीड टाइम को 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए कम से कम प्रिडिक्ट कर लीजिए, 8 वीक्स के लिए, है ना? तो आपको 8 वैल्यू लीड टाइम के लिए प्रिडिक्ट करिए और 20 वैल्यूज डिमांड के लिए प्रिडिक्ट करिए, ठीक है? ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या आपको रैंडम नंबर्स यहां गिवन है ना? रैंडम नंबर्स ये क्वेश्चन में गिवन है, देन यू हैव टू यूज दोस रैंडम नंबर्स। इफ दोस आर नॉट गिवन, देन यू हैव टू यूज रैंडम नंबर टेबल्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं जरा।
In this inventory problem, a very large number of combinations of the order quantities and reorder points will have to be experimented to reach the best policy. सही है. देखो reorder points की values कहां से कहां तक change हो रही है? 3 to 6. So how many options you are having? 3, 4, 5 and 6. 4 options you are having for the reorder points. And how many options you are having for the order quantities? 4 to 10. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 options. So 7 options for the order quantity and 4 options for the reorder points. So if a permutation combination you will apply, then 7 4 ja 28 options are there. 28 options are there. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम हो गई. आपको 28 टाइम्स सिमुलेट करना पड़ेगा चीजों को, है ना. पहले आपको सिमुलेट करना पड़ेगा, है ना. साथ में देखिए मैं जरा सा पीपीटी शेयर कर लेता हूँ फिलहाल, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग द पीपीटी. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So reorder point is varying from 3 to 6. है ना. 3 to 6 means I am having options 3, 4, 5 and 6. So let the reorder point is 3 and reorder quantity is varying from how much? 6 to 10. So I am having 4 to 10. So how 4 many? to 10. How many options I am having? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, 10. है ना. I am keeping the reorder point as 3 fixed. So how many options are there? बताइए. You are having now 7 options. है ना. आपके कॉम्बिनेशन हो गए 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. Similarly, if your reorder point is 4, then again you are having reorder quantity varying from 4 to 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means you are again having 7 options. Similarly, for 5 you are having again 7 options. है ना. For 6 you are having again 7 options. So 7 plus 7 4 times. So 7 into 4 you are having 28 options. है ना. Out of these 28 options, which option is best? Which combination is best? आपको ये बताना है. उस भंगू जो ओनर है उसके लिए which combination is best? 3 4 is best or 4 7 is best or 6 3 6 4 is best? Which is best out of these 28? ये चीज क्लियर हुई आपको? सागर शर्मा, out of these 28 options, which option is best for the owner of the electronic shop which is sold the product television sets? ठीक है. तो अब इस प्रॉब्लम को मैनुअली क्या आप 28 टाइम्स इसको सिमुलेट कर सकते हैं? आपको ये प्रॉब्लम 28 टाइम्स सिमुलेट करनी पड़ेगी, है ना. बट यू हैव टू डू मैनुअली. तो मैनुअली में आप क्या कर सकते हैं? यू टेक वन केस ओनली. आउट ऑफ दीज 28 केसेस यू टेक वन केस. कोई भी एक केस ले लीजिए इन 28 में से. ठीक है. तो कोई भी एक केस लेके 20 डेज के लिए सिमुलेट कर दीजिए. ठीक है. इसी तरह आपको मैनुअली यदि 28 बार करना हो देन इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई अगेन यू हैव टू गो फॉर द कंप्यूटर सिमुलेशन. तो चलिए इसमें से कोई एक केस लेके हम इस प्रॉब्लम को सिमुलेट करेंगे आज की क्लास में. ठीक है. तो मैं दोबारा से कोई भी एक केस लूंगा और उस केस के अकॉर्डिंग आई विल सिमुलेट. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आउट ऑफ 28 देखते हैं. हम किसी एक केस को लेंगे. सो इन दिस प्रॉब्लम order quantity is varying from 4 to 10. Reorder point varies from 3 to 6. So we are having 7 4 ja 28 options, है ना. Then alternatively starting with one combination, है ना. We will start with one combination. So the experimental progress in the direction of optimum combination only.
A search procedure will have to be developed for this. Since this all is not possible to demonstrate with hand calculations, it is left to the reader to do it on a computer. Here the simulation of the inventory system for one combination will only be demonstrated. Okay, so both the demand and the lead time are discretely distributed. We will use a table of random numbers and apply Monte Carlo method for generating the demand and the lead times. So the demand numbers will be allocated as in table. तो देखिए इन्होंने demand predict कर ली है ना? तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं. देखो क्या किया. This is the demand, weekly demand. The probability is given in the second column. Cumulative probability calculated in the third column. Random numbers are assigned. ठीक है? Random numbers assign कर दिए हैं. तो because the probability is 20%, तो आप इसमें 2 digit random number भी ले सकते हैं और इन्होंने 4 digit random numbers लिए हैं. कितनी लिए हैं? 4 digit random numbers. तो out of the 4 digit random numbers, इन्होंने 20% random number assign कर दिए फर्स्ट केस में, 20%, और 50% random number assign कर दिए सेकंड केस में, 15% थर्ड केस, 10% फोर्थ केस एंड 5% फॉर द लास्ट केस, है ना? दे हैव असाइन्ड दीज वैल्यूज. ठीक है, रैंडम नंबर असाइन हो गई. 4 डिजिट से प्रॉब्लम की है इन्होंने. हम इसे 2 डिजिट से भी कर सकते हैं, 3 डिजिट से भी कर सकते हैं. दिस इज अप टू अस, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ द सेकंड टेबल इज लीड टाइम टेबल. वीक्स प्रोबेबिलिटी, क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इन द थर्ड कॉलम एंड सिमिलरली द रैंडम नंबर्स. ओके, so from this distribution, flow diagram of the simulation model is given in figure 11.3. देखिए इसका फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको भी स्टडी किया करिए. दिस इज द फ्लो चार्ट. दिस इज द लॉजिक बिल्डिंग. फ्रॉम स्टार्ट you will first generate the demand. So generate the demand with the help of probability distribution, है ना? You will generate, this is your first step. After generating the demand, what will you do? You will reduce the inventory. मान लीजिए आपके स्टॉक में टेलीविजन सेट्स 9 हैं और उस दिन की डिमांड 4 है. Then you will reduce the inventory. 9 minus 4 equal to 5. After that, you will check that I have to reorder or not. So if your stock is less than 4, then you have to order. If it is more than 4, then you have done to order. Then if it is yes, generate the lead time from the probability distribution, update the order, है ना? If it is no, then check is the stock out. उसमें भी फिर 2 ऑप्शन है, yes and no. ठीक है. ऑर्डर रिसीव्ड को चेक करें, ऑर्डर रिसीव हुआ कि नहीं हुआ. जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यस और नो में फिर 2 लूप हैं. सो दिस इज द टोटल लॉजिक फॉर दिस प्रोग्राम. ठीक है. अब इसका आपको हम जरा सिमुलेशन भी दिखा देते हैं, है ना? ये देखिए सिमुलेशन किया हुआ है यहाँ पे. 2-3 लाइनें समझेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा. तो ध्यान से देखिएगा. पहली भी हम का एंडिंग इन्वेंट्री, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8. हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे स्टॉक में पहले से 8 टेलीविजन सेट्स हैं. ठीक है. अब पहला वीक, पहले वीक में रैंडम नंबर आई 0.8523. अकॉर्डिंग टू दिस रैंडम नंबर द डिमांड इज 3 टेलीविजन सेट्स. सो 8 minus 3 is 5. Your ending inventory is 5. Right? For one television set, the holding cost is 5 rupees. So 5 5 या 25 is the holding cost. Correct? अब देखिए क्या आपको ऑर्डर करना है इस वक्त? Yes or no? इस पॉइंट पर क्या आपको ऑर्डर करना है? आपका योर एंडिंग इन्वेंटरी इज 5. सो इफ योर एंडिंग इन्वेंटरी इज 5, इट इज मोर देन 4, देन यू हैव नॉट टू ऑर्डर. सो वी आर नॉट ऑर्डरिंग. सो रैंडम नंबर कॉलम इज ब्लैंक. लीड टाइम कॉलम इज आल्सो ब्लैंक. सेल लॉस्ट मींस देयर इज नो शॉर्टेज, सो इट इज आल्सो ब्लैंक. ये पहली लाइन क्लियर हुई? यस और नो? प्रत्युष सर, is it clear? Yes sir, clear हो गई है. Very good. Now to the second week, we are again generating the random number. According to this random number, the demand is 1 television set, and your stock is 5 units. 5 minus 1 is 4. So now your ending inventory is 4. है ना? So holding cost is 4 5 या 20. 20 rupees is the holding cost. And क्या आपको ऑर्डर करना है इस वक्त? Yes or no?
आपका स्टॉक कितना है? 4 यूनिट्स। क्या आपको ऑर्डर करना है? नहीं करना, अभी भी बाकी है स्टॉक में। हाँ, स्टॉक में 4 यूनिट्स हैं, तो वी आर नॉट ऑर्डरिंग। सो कम टू द थर्ड वीक, द रैंडम नंबर इज 0.4450. अकॉर्डिंग टू दैट द डिमांड इज 1 यूनिट. So 4 minus 1 is 3. Now the stock is 3. So this is the reorder point. We have taken this combination. So if 3, then we have to order. So first calculate the holding cost. 3 5 is 15, and this is the random number for the lead time. So according to this random number, the lead time is 3 weeks. 3 weeks. It means if you will order in the third week, then you will receive the order in the 3 plus 3 means 6 weeks. छठे वीक में आपको ये ऑर्डर रिसीव होगा. यू आर ऑर्डरिंग इन द थर्ड वीक, बट द ऑर्डर विल बी रिसीव्ड इन द सिक्स्थ वीक. सो आफ्टर दैट, ऑन द फोर्थ डे, दिस इज द रैंडम नंबर अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ, नॉट फोर्थ डे, द फोर्थ वीक. सो ऑन फोर्थ वीक, द रैंडम नंबर इज दिस मच. अकॉर्डिंग टू दिस रैंडम नंबर, द डिमांड इज 0. देयर इज नो डिमांड ऑन दैट डे. एंडिंग इन्वेंटरी इज 3 minus 0 is 3. The holding cost is 3 5 is 15. है ना, 3 5 is 15. This is the holding cost, है ना. And now the stock is 3. This is the reorder point, but the order has been already placed. So we can't do the second order because the first order has not received, है ना. So these columns are blank now. So on fifth day, the demand is again 0. The stock is 3. The order has not received, then we will not order. On the sixth week, the demand is 2 television sets, है ना. And in our stock, 3 minus 2 is 1, and 5 television sets are received, which were ordered in the third week. In third week, we have ordered for the 5 television sets. So this problem is for the combination of 3 plus 5. 3 is the reorder point and 5 is the reorder quantity, right? So 1 plus 5 is 6. Here is the cost. So cost is 5 1 ja 5. 5 1 ja 5. On the seventh day, seventh week, the demand random number is 0.9706. Demand is 4 sets. In stock, you are having 6 television sets. 6 minus 4 is 2. 2 5 ja 10 is the holding cost. Because the 2 television sets are less than 3, we will order. So we have generated the random number for the lead time. It is the 3 weeks. So we are ordering in the 7th week. So this order will be received in the 10th week. तो आप देख लीजिए 10th week में +5 किया हुआ है, ठीक है, 10th week. So in this way, this simulation will go on, है ना. So for how many days the problem has been simulated? 30 weeks. The problem has been simulated for the 30 weeks, है ना. हम तो 20 बोल सोच रहे थे कि 20 करेंगे, पर इसमें जो सोल्यूशन दिया है वो 30 वीक से दिया है ना. ये आपके ऊपर है कि आप कितने से सोल्यूशन देते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम मैनेजमेंट. इन एग्जाम में यदि आपके पास समय कम है, देन यू सिमुलेट फॉर द 10 वीक्स ओनली एंड गिव द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है. इफ यू आर हैविंग मोर टाइम, देन यू कैन गो फॉर द मोर स्टेप्स. सो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सिमुलेटेड फॉर 30 वीक्स. तो आउट ऑफ 30 वीक्स, हाउ मेनी ऑर्डर्स यू हैव प्लेस्ड? जरा बताइए कितने ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं. यू हैव प्लेस्ड फर्स्ट ऑर्डर इन द थर्ड वीक, second order in 7th week, third order in 13th week, fourth order in 18th week, ठीक है. This is the fourth order. Then fifth order in the 29th week. So how many orders you have? And 23 weeks also. So how many orders you have placed? 1 2 3 4. नीचे से काउंट कर लीजिए. It is 4 5 and 6. So you have placed 6 orders, ठीक है, 6 orders. So how much cost you will pay? There is 100 rupees are charged for one order. So you have placed 6 orders. Then what will be the order cost? 600. Yes. So 100 into 6, the order cost is 600. इसको नोट कर लीजिए एक जगह. So your order cost is 600. Correct? ये आप इस केस में आपने ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. अब बताइए व्हाट इज द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. सो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वीक इज 25, second week is 20, third week is 15, fourth week is again 15, and so on, ठीक है. Then what is the total holding cost? So you will sum this column.
है ना, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम का आपको समेशन निकालना है, टोटल करना है। तो टोटल इज गिवन ओवर हियर, इट इज 345। ठीक है, आप टोटल करके चेक कर लीजिएगा कि ये 345 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इट इज कमिंग 345। So order cost is 600, holding cost is 345. What is the total cost? 600 plus 345. What is the total cost? 600 plus 345, 945. For this combination, है ना, we have simulated the problem for one combination out of 28 combinations. ये तो केवल एक कॉम्बिनेशन की बात है। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन पर ऑर्डर कॉस्ट 600 आ रही है, होल्डिंग कॉस्ट 345 आ रही है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 945। इसी तरह से आप दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए, तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए, चौथे कॉम्बिनेशन के लिए, 28वें कॉम्बिनेशन के लिए कितनी ऑर्डर कॉस्ट है, कितनी होल्डिंग कॉस्ट है, कितनी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन पे कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो रहा है, दूसरे वाले पे कितना होगा, तीसरे पे कितना होगा, 28 वाले पे कितना होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में कितना एवरेज स्टॉक है, कितनी एंडिंग इन्वेंट्री है, दूसरे कॉम्बिनेशन में कितनी एंडिंग इन्वेंट्री है, 28वें कॉम्बिनेशन में कितनी इन्वेंट्री है। तो जब आपके पास इन 28 केसेस का डाटा होगा, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड योर इन्वेंट्री पॉलिसी। ठीक है, सिर्फ एक केस से आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मैनुअली एक केस को लेके दी हुई है, बट इफ यू वांट टू डिसाइड योर इन्वेंट्री पॉलिसी एग्जैक्टली विदाउट एरर फ्री इन्वेंट्री पॉलिसी, है ना, फॉर एरर फ्री इन्वेंट्री पॉलिसी यू हैव टू कंसीडर ऑल दी 28 केसेस. And for those 28 cases, it is better you utilize the computer simulation, because for the manual simulation the problem will be very very lengthy. Correct? अब देखिए लास्ट कॉलम को थोड़ा एनालाइज करिए। सेल, व्हाट इज द लॉस्ट? तो देखिए यहाँ पर शॉर्टेज इज वन टेलीविजन शॉर्टेज है। यहाँ पे देखो एक डिमांड आई है लेकिन हमारे स्टॉक में 0 है, दैट्स व्हाई दिस इज अ शॉर्टेज। यहाँ पे 4 की डिमांड आई है, हमारा स्टॉक 0 है, दैट्स व्हाई इट इज शॉर्टेज। यहाँ पे 2 की डिमांड आई है, हमारा स्टॉक 0 है, दैट्स व्हाई इट इज शॉर्टेज। है ना, हमारे पास एक है ना, एक स्टॉक में है, 2 की डिमांड है, इसलिए एक शॉर्टेज है एंड 2 शॉर्टेज है। व्हाट इज द टोटल शॉर्टेज? सो टोटल शॉर्टेज इज 14 टेलीविजन सेट्स। तो देखिए इस प्रॉब्लम में, इस कॉम्बिनेशन में 14 इज द शॉर्टेज। दूसरे कॉम्बिनेशन में कितना शॉर्टेज है, तीसरे कॉम्बिनेशन में कितना शॉर्टेज है, 28 कॉम्बिनेशंस में व्हाट इज द शॉर्टेज, है ना। दिस इज आल्सो ए फैक्टर टू डिसाइड द इन्वेंट्री पॉलिसी। सो मेनी पैरामीटर्स, है ना, सो मेनी केसेस, सो मेनी कॉम्बिनेशंस। तो यू हैव टू कंसीडर ऑल द 28 केसेस बिफोर डिसाइडिंग द इन्वेंट्री पॉलिसी। तो इस केस का कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बता सकते हो कितने परसेंट है? एनीवन? व्हाट इज द सर्विस लेवल इन दिस कॉम्बिनेशन? बताओ रोहित, कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट द सर्विस लेवल? सुन पा रहे हैं मुझे? लवकेश? यस सर। हाँ बताइए कैसे निकालेंगे इस केस में हम सर्विस लेवल? तो कैसे सर्विस लेवल हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम डिमांड कॉलम का टोटल करेंगे। डिमांड का टोटल करेंगे सर। यस, वी विल गो फॉर द टोटल ऑफ द माइनस कर देंगे शॉर्टेज। हाँ, उसमें से हम शॉर्टेज माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय डिमांड। डिमांड माइनस शॉर्टेज डिवाइड बाय डिमांड इनटू 100। सो दिस विल बी योर सर्विस लेवल। ठीक है, तो जरा डिमांड का टोटल देखिए कितना आ रहा है, एक बार टोटल कर दीजिए जल्दी से फटाफट। 3 + 1 4 5 5 + 2 7 7 + 4 11 13 14 18 19 22 24 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 22 दिन तक 32 हो गया। अब 23 से करिए, 33 34 38 39 41 42 44 46। So total demand is 46 television sets. ठीक है, out of that 14 is the shortage. So 46 minus 14 is 40. How much? 32. 32 divided by 46 करिए जरा कितना आ रहा है, परसेंटेज निकालिए।
69.56%. Yes. So your service level is 69% for this combination. है ना? For the next combination, for the again third, fourth, fifth, and 28. There are total 28 combinations. So your service level, you can make a table for that. Okay. On the basis of this data, then you can decide your inventory policy, and that will be quite वो इन्वेंट्री पॉलिसी जो है आपको अच्छा रेवेन्यू देगी, आपके सिस्टम की कॉस्ट कम आएगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, आपको होल्डिंग कॉस्ट कम पे करनी पड़ेगी, आपको ऑर्डर कॉस्ट भी कम पे करनी पड़ेगी. So इन सब चीजों के जो आंसर्स हैं वो हमें कौन देता है? सिमुलेशंस रिजल्ट्स. The simulation results gives the answer for these all questions. What is the best combination out of 28? है ना? And for this best combination, this is the service level, this is the holding cost, this is the order cost, this is the total cost, this is the pattern of the demand, this is the pattern of the stock. Like, so I think this problem is clear. है ना? अच्छी प्रॉब्लम है ये, जरा खुद अपने हाथ से करके देखिएगा. करीब 2 केसों के लिए कर लीजिए आप, है ना? मैं असाइनमेंट दे देता हूं आपको. ये प्रॉब्लम इसमें हुई है 3 और कितने कॉम्बिनेशन के लिए हुई है? ये देखो, इसने बताया होगा यहाँ पे कि इसने कौन से कॉम्बिनेशन के लिए की है. चेक करिए इन्होंने किस कॉम्बिनेशन के लिए की है. फॉर विच ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? Simulation for 30 weeks time is given. To start the simulation, it is assumed that 8 units are in the shop. आपके स्टॉक में पहले से 8 यूनिट हैं, ये मान लिया गया है इसमें, है ना? अब देखिए, ऑर्डर क्वांटिटी इज 5 एंड रीऑर्डर पॉइंट इज टेकन एज 3. तो इनका कॉम्बिनेशन 3-5 है. ये प्रॉब्लम जो हुई है वो 3 और 5 के लिए हुई है. अब आप करिए इसको 3 और 6 के लिए, ठीक है? या आप दोनों को एक एक बढ़ा दो, 4 और 6 के लिए और 5 और 7 के लिए. प्लीज नोट डाउन द असाइनमेंट. 4 and 6, 5 and 7, उसके लिए प्रॉब्लम को सिमुलेट करना है और 30 डेज के लिए सिमुलेट करना है. ठीक है? 30 डेज के लिए सिमुलेट करना है. और डिमांड का पैटर्न आप यही रख लीजिएगा जो इस प्रॉब्लम में यूज हुआ है, क्योंकि डिमांड पैटर्न थोड़ी बदलेगा हमारा. 30 डेज का वही डिमांड पैटर्न रहेगा. ठीक है? सो डिमांड पैटर्न विल बी द सेम, ओनली द रीऑर्डर पॉइंट इज 4 and reorder quantity is 6 for one combination, and the next is 5 and 7. 4 and 6, 5 and 7. असाइनमेंट क्लियर है? बताइए. सागर शर्मा, आपके असाइनमेंट नहीं आ रहे हैं? आपको असाइनमेंट क्लियर है कि क्या करना है? 3 और 5 की जगह आपको लेना है 4 and 6, और उसके लिए प्रॉब्लम, चलो एक ही ले लो, केवल 2 मत लो, लंबा हो जाएगा. You take only one case, 4 and 6. ठीक है? तो इन्होंने देखो क्या कहा, नंबर ऑफ द ऑर्डर्स प्लेस्ड. कितने बार ऑर्डर प्लेस हुआ? 6 बार ऑर्डर प्लेस हुआ. व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट? 600 रुपीज. व्हाट इज द होल्डिंग कॉस्ट? 345 रुपीज. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 945 रुपीज. व्हाट इज द शॉर्टेज? 14 यूनिट्स. ठीक है? एंड सिमुलेशन ऑफ 30 वीक्स इज टू स्मॉल टू गिव द रिलायबल रिजल्ट्स. But the trend is clear that the ordering quantity should be increased and also the reorder point will be raised to reduce the shortages. है ना? ये आपके इनका नट सेल में एक डिसीजन है कि ऐसा करने से एक ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है कि यदि हम ऑर्डरिंग क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, reorder पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, तो हमारे शॉर्टेजेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है? So we have solved this full question. प्लीज रेफर DS. ये मैंने ई बुक खोली हुई है, आप भी ई बुक का रिसोर्सेज का यूज करिए, है ना? अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल्स पर आप ई बुक लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी GL यूनिवर्सिटी से इसे यूज कर सकते हैं. यू आर नॉट हैविंग द हार्ड कॉपी, है ना? यूज इट. सो इज देयर एनी क्वेरी इन दिस प्रॉब्लम? प्लीज आस्क. और क्लियर है तो क्लियर बताइए. या हाँ, प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू. यस, रोहित कुमार सिंह. आकाश बताइए. हाँ, आकाश बताइए. यस सर. प्रॉब्लम क्लियर है? वेरी गुड. Yes, sir. और आपको एक असाइनमेंट करके देना है, केवल एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 to 6. 3 to 5 किया हुआ है, हमने अभी किया है. हमें 4 और 6 करना है. 4 इज द रीऑर्डर पॉइंट एंड 6 इज द रीऑर्डर क्वांटिटी.
ठीक है, असाइनमेंट इज क्लियर, उसको मुझे करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा। और एग्जामिनेशन पैटर्न इज आल्सो क्लियर, है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न में इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज सर एक डाउट, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें 8 यूनिट दिया हुआ है कि इसने पहले अज्यूम किया 8 यूनिट्स। अब आप 80 रखिएगा, है ना, तभी तो हम हम 80 कंपेयर रखेंगे। कर पाएंगे केसेस को। कंपेयर करने के लिए हमको कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टॉक जो है वो हमने 8 यूनिट फिक्स कर दिया है ना। अब आप जो 28 केस हैं आपके पास, 28 कॉम्बिनेशन है, उन सभी में हम 8 लेके ही सिमुलेट करेंगे, है ना। देन ओनली वी कैन कंपेयर, अदरवाइज हम वैल्यू बदल देंगे, फिर कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो आपको 8 यूनिट्स ही लेके चलना है, राइट। एनी अदर क्वेरी? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दी simulations on the queuing problem. Okay, thank you, thanks for listening, thanks for